عقیدہ حیات النبی پر روشنی ڈالیے۔ عقیدہ حیات النبی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ تسکین الصدور کی صفحہ 36 پہ قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے خود لکھا ہے اپنے قلم سے تقریر کرتے ہوئے کہ جمعیت علماء اسلام فیصلے کے مطابق عقیدہ حیات النبی پر یہ دلائل کی کتاب تحریر کی گئی، اور فتاوی مفتی محمود جلد نمبر 1 میں کتاب العقائد کے اندر حضرت مفتی صاحب نے واضح لکھا ہے کہ انبیاء کرام وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں، خصوصاً رسول اللہ کو قبر مبارک میں حیات حاصل ہے، اور قبر کے قریب آپ علیہ السلام سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ اس پر قرآن اور حدیث سے دلائل موجود ہیں، آپ اس دلائل کو سمجھ لینا۔ کچھ لوگ اسلام کے خلاف پوسٹ شیئر کرتے ہیں، فیس بک پہ آتی ہے، ہاں قادیانی پوسٹ بناتے ہیں گستاخی والی، اوپر لکھتے ہیں لعنت بھیج کر شیئر کر دو، تو ہمارے دوست شیئر کر دیتے ہیں، اور سادے بندے لعنت بھیج کر ڈیلیٹ کیا جاتا ہے، شیئر نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ایسی چیزیں نہ کریں۔ محسن میری بیٹی ہے، اس کی عمر 13 سال ہے، اس کو پردہ کرنے مدرسۃ البنات میں پڑھتے ہیں، تو ٹھیک ہے، بالغ ہونے کے بعد تو 9 سال کے بعد پردہ ہونا چاہیے، تو آپ پردہ کرائیں۔ باقی میری دعا ہے رب کریم آپ کی بیٹی کو عالمہ فاضلہ بنائے۔ پب جی گیم کھیلنا کیسا ہے، اس بارے میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ میں نے نہ کھیلی ہے نہ دیکھی ہے، کچھ عرصہ پہلے جو سنا تھا اور فتاوے کو دیکھ کر میں نے کہہ دیا، تو پب جی والے جو پتہ نہیں کوئی حضرات ہیں وہ ہم سے رابطہ کرتے کہ مفتی صاحب اللہ کا نام مانو، یہ ہم میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری گیم میں نہیں ہے کہ کعبۃ اللہ پر فائر مارو، ہماری گیم میں نہیں ہے بت سے سجدہ لو اور بت سے انرجی لو، نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر کفر کا فتویٰ نہیں ہے، اور اگر ہے تو ہم اس فتوے پر قائم ہیں، کیونکہ فتویٰ اصولوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ یا تو پب جی گیم میں کھیلتا تو میں دیکھتا، مجھے پب جی کے بارے میں اتنا نہیں پتا۔ ایک بار انڈیا سے کسی نے ہمارے لائیو سیشن میں سوال کیا کہ پب جی کے بارے میں بتائیں، تو میں نے کہا جی اماں جی کے بارے میں تو جانتا ہوں، ابو جی کے بارے میں جانتا ہوں، مجھے پب جی کے بارے میں نہیں پتا۔ ہمارا سیشن ختم ہوا تو مجھے میرے ایڈمن نے کہا کہ حضرت پب جی گیم ہے، تو بابا جو کھیلے اور دیکھے اس کو پتا ہے، ہم نے جو سنا ہے آپ کو بتا دیا، ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ اگر اس میں یہ چیزیں ہیں کہ بیت اللہ پہ فائر مارو اور بت سے سامنے سجدہ کرو تو ناجائز ہے، غلط ہے، اپنے نکاحوں کی خیر مناؤ، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ ایک گیم کی طرح گیم ہے، فضول اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، پھر ہم حرام کی بات اور کفر کی بات نہیں کریں گے۔ عقیدہ حیات النبی کے انکاری، تمام علماء دیوبند عقیدہ حیات النبی کے قائل ہیں، کوئی دیوبندی منکر نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اماں فاطمہ کو باغ فدق کیوں نہیں دیا تھا؟ وہ تو وارث تھی۔ خدا کے بندے، اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا تو آپ اس جواب کو پورا سمجھے تو بات فائنل ہو جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب میں فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، آپ کے والد نے فیصلہ دیا تھا، آپ اپنے خاوند حضرت علی سے پوچھیں، چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیں، حضرت رسول اللہ کا فیصلہ ہے کہ وراثت انبیاء کی تقسیم نہیں ہوتی، تو آپ بتائیں آپ کو حصہ دوں، حضور کا فیصلہ توڑ دوں؟ تو اماں نے کہا کہ مجھے حضور کا فیصلہ قبول ہے، آپ توڑے نہیں، تو بات فائنل ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں ابو بکر کھا گیا، اور اگر وراثت تقسیم ہوتی تو ابو بکر اپنی بیٹی حضور کی بیوی حضرت عائشہ کو تو حصہ دیتا، لیکن ظالموں نے کیا سے کیا کہہ دیا۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، سنو، غیرت ہے اگر کسی سوال کرنے والے میں، جرت رکھتا ہے وہ بندہ، ماں کا دودھ پیا اس نے بوتل کا نہیں پیا، تو اس سوال کا مجھے جواب دے۔ میں جھوٹ مان جاتا ہوں، ابو بکر عمر عثمان کھا گئے تھے حق۔ جب حضرت علی کا دور آیا تو باغ فدق کی زمین قائم تھی، اس پر دریا نہیں آیا تھا، تو حضرت علی نے وہ زمین اپنے بچوں کے نام کیوں نہیں کی تھی؟ آؤ ماں کا حصہ ہے لے لو، حضرت علی نے کیوں نہیں کی تھی؟ تو پھر یا ابو بکر کے فیصلے کو علی نے مانا ہے تو پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پہ حرف آئے گا۔ حضرت ابو بکر کو غاصب کہنے والوں، شرم اور حیا کی بات کرنی چاہیے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جب وفات پا رہی تھی تو ان کی آخری خدمت ابو بکر کی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔ اگر وہ ظالم کی اور غاصب کی بیوی ہوتی تو اماں فاطمہ کہتی اٹھ جا، میں تیرے ہاتھ کی خدمت نہیں لیتی، تو میرے حق غصب کرنے والے کی بیوی ہے۔ جی نہیں، اماں فاطمہ نے اسے قبول کیا ہے، اور ابو بکر صدیق نے اماں فاطمہ کا جنازہ پڑھایا ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حکم پہ۔ کیا علی کو نہیں دکھتا؟ کیا حسن کو نہیں دکھتا؟ حسین کو نہیں دکھتا؟ تمہیں دکھتا ہے؟ اور میں ایک بات کہتا ہوں، حضرت علی المرتضیٰ
रज़ी अल्लाह ने अपने बेटे का नाम अबू बकर सिद्दीक की वफात के बाद अबू बकर इब्ने अली रखा है, जिसकी शहादत मैदान करबला में है। तो अबू बकर से तो अली को इतना प्यार है, वो बेटे का नाम रखता है। इमाम हसन कहते हैं मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ, कासिम बिन हसन के बाद मोहम्मद बिन हसन मुसन्ना से पहले एक बेटा पैदा हुआ, मैं अब्बू के पास लेकर गया इमाम हसन और कहा हजरत अली इसका नाम रखिए। फरमाया बेटा मेरी बात मानते हो तो इसका नाम रखो हसन, अबू बकर बिन हसन बिन अली। ये भी करबला का शहीद है, 72 तनों में शामिल है। जालिमो झूठ बोलते हो अबू बकर सिद्दीक की जात अक़दस पे कि यह हक खा गया था। अली अल मुर्तजा का खानदान हजरत अबू बकर सिद्दीक का कदरदान नजर आता है और तुम उस पे जुल्म करते हो। कल क़यामत में हजरत अली को क्या मुंह दिखाओगे? मैं बहुत हैरान हूं, इनकी दुश्मनी है हजरत अली अल मुर्तजा से भी। ये उसका इजहार यूं करते हैं कि अबू बकर के खिलाफ बोले, वही फैसला हजरत अली ने बरकरार रखा तो हजरत अली के खिलाफ भी हो जाएगा। शर्म नहीं आती इनको, खामखा से एतराज उठाकर बैठे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अगर सच मशकूक है ना तो इस धरती पे सच्चा फिर उम्मत में कोई नहीं है, अगर अबू बकर भी सच्चा नहीं है। और मैं एक जुमला कहता हूं इन जालिमों को कहता हूं जो अबू बकर पे बोलते हैं, घर आए मेहमान की कदर अबू बकर से सीखो। नहीं समझे? नहीं समझे? मैं समझाता हूं। और जालिमो अबू बकर रज़ी अल्लाह के दरवाजे पे जब आका इनामदार चल के गए थे, अबू बकर ने तन मन धन आल औलाद जान माल वक्त लगा दिया, एड़ी पर डंग पे डंग सहे, पैगंबर के साथ गार में पैगंबर की निगरानी की, बेटी अस्मा के चेहरे पे थप्पड़ बर्दाश्त किए, अब्दुल्ला बेटे को निगरानी पे लगाया, आमिर बिन फुहैरा गुलाम को दूध भेजने के लिए बुलाया, अपने वालिद के पैसे सारे उठाए, सिर्फ खर्च के दिए कि मेरा बेटा आपका पोता कमा के देगा, हुजूर पे लगा दिए। अबू बकर ने इसने घर आए मेहमान की यूं कदर की है। और जालिमो तुमने खत लिख के इमाम हुसैन को करबला बुलाया था, फिर उसी खत के लिखे हुए हाथों में तलवारें पकड़ी थी, उसी हाथों में तुमने नेज़े पकड़े थे, उसी हाथों में तुमने तीरों तूफान पकड़ के नवासे रसूल पे हमलावर हुए थे। करबला की धरती पे उसका खून बहा था, करबला की धरती पे हजरत हुसैन की आल औलाद को ज़बह किया था। यहां आले रसूल के कातिल तुम हो, हुसैन इब्ने अली को बुला के मारने वाले तुम हो। तुमने घर आए मेहमान की यूं बेइज्जती की है, कयामत तो आ जाएगी, तुम्हारे इस किए पे लानतें बरसती रहेगी। तुम लोग अबू बकर सिद्दीक पे बोलो। मैं हैरान हूं कि घर आए मेहमान की कदर जो तुमने की है और जो अबू बकर ने की है, इस पर बात की जाए। मैं कातिलीन हुसैन पे आज भी लानत करता हूं और ता कयामत इन पे लानत करता हूं। नवासा रसूल का खून कोई आम खून है? और बातें फिर उस शख्स पे जिसका नाम अफजलुल बशर बादल अंबिया है। कोई बंदा अपने मुंह को देखे और फिर इस मामले को देखे। नमाज जनाजा में सूरतुल फातिहा पढ़ना जरूरी है? जरूरी नहीं है, सिर्फ नमाज जनाजा दुआ है, तो उसमें जो दुआएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हैं मुस्तदरक के हाकिम में मौजूद है, वही दुआएं हम पढ़ते हैं, बच्ची के लिए और बच्चे के लिए और बड़ों के लिए और। अगर कोई बतौर दुआ फातिहा पढ़ना चाहता है पढ़ ले, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। बल्कि सही बुखारी में है कि एक बार एक सहाबी ने सूरत फातिहा पढ़ी तो सब देखने लग गए, तो उन्होंने कहा ये तरीका भी है। तो जो सब देखने लगे इसका माना है ये आम तौर पर तरीका राइज नहीं था, तभी सब देखने लगे, इसको दलील नहीं बनाया जा सकता। जो शख्स इमाम अबू हनीफा को गालियां देते हो इसके पीछे नमाज, पता नहीं आप कैसी नमाज के कायल हैं जो इमाम अबू हनीफा सहाबा के शागिर्द के खिलाफ भी बोले और आप उसके पीछे नमाजें भी पढ़ें। मरवान बिन हकम को हुजूर ने मदीना से निकाला, हज़रत अबू बकर उमर के ज़माने में मदीना नहीं आया, हज़रत उस्मान ने उनको बुलाकर मदीना गवर्नर बनाया। सवाल करने वाला झूठ बोलता है। मरवान उस वक्त 5 साल का था जब उसके बाप को निकाला। ये हकम का मसला है, मरवान का नहीं है, ये पहली बात है। दूसरी बात है, जिस हकम को निकाला था 5 साल की मुद्दत थी उसके जलावतनी की, और जब हज़रत उस्मान ने बुलाया था तो 15 साल गुजर गए थे, तो अब तो मुद्दत पूरी हो गई थी। और हज़रत उस्मान ने फिर इजाज़त भी ले ली थी, और हुजूर ने मक्का से निकाला था। हज़रत उस्मान ने मक्का नहीं बुलाया, मदीना बुलाया था। जहाँ से निकाला वहाँ बुलाया भी नहीं, और उसकी मुद्दत भी पूरी हो गई थी।
पूरी बात करें, अधूरी बात न करें। हजरत उस्मान हुजूर के घर का डबल दामाद है, उसको बहुत अच्छी तरह पता है। और हजरत उस्मान का हुजूर से रिश्ता हजरत अली मुर्तजा के ये दामादी वाले रिश्ते से पहले बना है। हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने और सहाबा के ज़माने में ग़ुलाम और बांदियाँ होती थी, क्यों नहीं है? उस वक़्त जिहाद होता था, अब जिहाद को फसाद बना दिया गया है, तो इसीलिए आप बांदियों के चक्कर पे बैठे हैं लेकिन मसले को भूल बैठे हैं। मौलाना फजल रहमान की कोई दीनी खिदमत हो तो बताएं। मौलाना फजल रहमान की सबसे बड़ी दीनी खिदमत यही है कि आज हम सारे दाढ़ियाँ टोपियाँ पगड़ियाँ वाले खुलेआम बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है। मौलाना फजल रहमान की दीनी खिदमत ये है कि जब आप जाते हो आईडी कार्ड बनवाने तो उस शनाख्ती कार्ड पे मज़हब का खाना ये मौलाना फजल रहमान ने बहाल किया था, वरना मुशर्रफ दौर में ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। मौलाना फजल रहमान की आपने दीनी खिदमत देखने हो तो आप जाकर पूरी दुनिया के बड़े बड़े उलमाए कराम से पूछ लें कि इस धरती पे इस्लाम का नाम लेवा कोई आलिम सियासी तौर पे सबसे बड़ा ताकतवर है तो उसका नाम बता दो। आप इस धरती पे इस 6 बर्रे आज़मों में जहाँ मखलूक है, 7वें में मखलूक नहीं है, आप नाम बता दें। आप दारुल देवबंद पे फ़ख्र करते हो, तुमने देखा नहीं है दारुल देवबंद के मोहतमिम मौलाना मरगूबुर रहमान रहमहुल्लाह जब 2001 में अप्रैल के अंदर तारो जवाब पेशावर 100 साल उस पर आए थे, 150 साल खिदमत दारुल देवबंद पे, तो मौलाना फजल रहमान को देवबंद की इजाज़ी सनद अता की थी, मेरे आंखों के सामने की बात। देवबंद के माथे पे उसका नाम रकम है, दारुल देवबंद उस पर फ़ख्र करता है। मैं सऊदीया में था, मदीना तैयबा में, वजारत दाखिला के एक आलिम दीन हज़रत मौलाना के साथ थे। मदीना तैयबा हमारी मुलाकात हुई तो मौलाना ने मेरा उनको तारुफ कराया कि हमारे शहर के हम इकट्ठे हैं, पूरे बात बताई। तो उन्होंने अरबी में मुझे कहा, उनकी आंखें में आंसू डगमगा आए थे कि तुम सिर्फ पाकिस्तान वाले इस पे अपना हक नहीं रखते, हम मुसलमान हैं, हम भी हक रखते हैं। या अल्लाह के रसूल के शहर की बात कर रहा हूँ, मैं झूठ बोलूँ अल्लाह मेरे साथ मदद खींच ले। हम कहते हैं यार क्या काम किया, ऐसी ऐसी आंखें ठीक लगवा लें या ऐनक अपनी ठीक करा लें। जनाजा के बाद मैयत के लिए हाथ उठाकर दुआ करना, नमाज जनाजा के बाद जो दुआ है वो कब्र पे है, वो हुजूर ने मांगी, हम मांगते हैं। नमाज जनाजा खुद दुआ है, दुआ के बाद दूसरी दुआ का मतलब जब तदफीन हो जाए फिर दुआ है। सलाम फेरने के बाद हुजूर ने कभी दुआ नहीं मांगी, अगर मांगी है तो हमें लफ्ज़ दिखा दे कौन से लफ्ज़ है। जैसे मस्जिद जाने की दुआ है, निकलने की दुआ है, घर में जाने की दुआ है, निकलने की दुआ है, सोने की दुआ है, उठने की दुआ के लफ्ज़ है, ऐसे सलाम जनाजा के फ़ौरन बाद दुआ के लफ्ज़ क्या है आप दिखा दो और मेरा मोबाइल आप तोहफे में ले लो। वो लफ्ज़ तो कहीं है ही नहीं, ऐसे लोगों ने ठोके हुए हैं दुनिया में। तो बाबा जो हुजूर ने काम नहीं किया वो हम नहीं करते। कायद सिंध हज़रत मौलाना राशिद महमूद सुमरू जमीयत उलमा इस्लाम वाले, इनके साथ और तर्जुमानी पर कोई बात। मौलाना राशिद सुमरू दामत बरकात, हमने एक तारीखी कारनामे के तौर पे सिंध की जमीयत को अपने पाँव पे खड़ा कर दिया। अल्लाह इस शहजादे की ज़िंदगी में बरक़ात अता फरमाए, हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। उस शख्सियत के काम देखें तो डॉक्टर साहब थे वाकई, लेकिन इस बंदे ने जो इन एजेंटों को टीका लगाया है ना, तो वाकई डॉक्टर के बेटा होने का हक अदा किया है। ये सखर की मसाजिद पर वो जो क्रेनें आई थी आप सब ने देखा है, हाँ, और उनकी इज्जतों पर बात हुई तो रोड पे बैठ के भी उसने मनवाया है कि मैं क्या हूँ। और फिर जब मदीना मस्जिद, अभी हम कराची में थे, जो वहाँ पर बात हुई है वो भी उस बंदे ने बतलाया। तो मसाजिद का मुहाफिज है। अभी कह रहे थे ना कि मौलाना की क्या खिदमत है, ये मौलाना के कारकुनों की खिदमत है। अल्लाह के घर के लिए कौन बोला है और बाकियों के लिए कौन बोला है। यकीन माने जमीयत ने अपनी सलाहियतें वक्फ कर दी वहाँ पर, और उन बंदों ने लाखों का इज्तिमा इकट्ठा करके बताया कि अदलिया अदलिया है, लेकिन अदलिया अपने फैसले को देखे कि मैं अपने फैसलों पे क्या कह रहा हूँ और क्या नहीं कह रहा हूँ। इस तरह की बात बड़ी बात है। मेरी तो दुआ है अल्लाह पाक इनकी हिफाजत फरमाए। मोहतरम मौलाना साहब, मेरे ऊपर कर्ज बहुत हो गए हैं, दुआ करें, वजीफ़ा बताएं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर्ज के उतारने का जो वजीफ़ा बताते थे वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है अल्लाहुम्मा मकफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। इसे आप कसरत से पढ़ें, मेरा ज़ाती तजर्बा है, लाखों का कर्ज़ा उतर जाता है। लेकिन नीयत अगर आपकी कर्ज़ा लेते वक्त ये हो कि मैं कर्ज़ा लौटाऊँगा, तो एक फ़रिश्ता आपके तावन करता रहेगा
اور اگر نیت یہ ہو قرضہ لیتے وقت کہ تو بڑا پیسے والے اب میں قرضہ لے کر کھا جاؤں گا، پھر شیطان آپ کے ساتھ رہے گا اور قرضہ نہیں اتارنے دے گا. اس لیے اپنی نیت کو ٹھیک کر کے جیو. ہاں مولانا زکریا صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں رابطے میں تھے، تو حضرت بالکل انشاءاللہ تعالی ان کے بارے میں جو بات ہے میرے تعلق میں اور باتوں میں آپ حضرات رابطے میں رہیں تو مولانا انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے. جزاکم اللہ تعالی.